Shalom. Welcome back to this devotion in the name of Jesus. शालोम, इस डिवोशनल में पुनः आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। We are on a two-part series called Jesus Understands हम You. दो भाग की श्रृंखला में हैं जिसका शीर्षक है यीशु मसीह आपको समझते हैं। Most of us, when we go through troubled times, हम से अधिकांश लोग जब हम संकट के समयों से गुजरते we हैं tend to cringe and cry. तो हम सिकुड़ से जाते हैं, रोने लग जाते हैं We say that, why is it me, Lord? और हम ये प्रश्न फिर पूछते हैं कि मैं क्यों। The Lord Almighty wants to encourage us. परमेश्वर हमको प्रोत्साहन देना चाहते He हैं, wants to build us. वो हमको बनाना He चाहते wants हैं, to strengthen us. वो हमको बल प्रदान करना He wants चाहते to हैं send in a word through this devotional to say that, son, I am with you. और इस डिवोशनल के जरिए वो आपसे या इन डिवोशनल्स के जरिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। Our Lord Jesus Christ wants to say that I went through it and I understand what you're going through. हमारा प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं हमसे कि मैं उन चीज़ों से गुजरा हूँ और मैं समझता हूँ जो आप चीज़ों से गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ। So yesterday we looked at least 4 things. तो कल हमने 4 बातों को देखा। This morning we're going to look at least 3 things. इस सवेरे के वक्त हम 3 बातों को But देखेंगे। before we go into those 3 उन things, 3 बातों में जाने से पहले I want us to recap to see what are the 4 things that we saw और yesterday. कल जो हमने 4 बातों को देखा उसको आइए हम देख लेते हैं। Many may be saying that we have family problems. आप में से बहुत लोग शायद ये कह रहे हैं कि पारिवारिक समस्याएं हैं हमारी। Jesus went through it. यीशु मसीह भी पारिवारिक समस्याओं से गुजरे। Jesus was not backed and he was not endorsed by his family. यीशु मसीह को खुद के परिवार ने बढ़ावा नहीं दिया। And now number 2, that somebody may be saying that, Pastor, I'm constantly overwhelmed at my workplace. तो कल हमने देखा दूसरा पॉइंट कि पासबान मेरे काम करने के क्षेत्र में निरंतर दबाव मुझ पर होता है। Jesus went through it so much so that he did not even have time to have his lunch. काम के क्षेत्र में दबाव यीशु मसीह ने भी झेला, इतना ज्यादा वो व्यस्त थे काम को लेकर कि उनको खाने के लिए भी समय नहीं मिलता था। Somebody may say, Pastor, that I feel rejected. और कोई शायद ये कह सकता है कि पासबान मुझे अपनाया नहीं जाता है। Jesus suffered it also. यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। When he was in Nazareth, the people of Nazareth did not accept him. जब वो नजरत में थे तो नजरत के लोगों ने उनको अपनाया नहीं। When he went outside Nazareth, the world questioned him and said, can anything good come out of Nazareth? जब नजरत से वो बाहर गए तो बाहर के लोग ये प्रश्न पूछते थे कि नजरत से कुछ अच्छा निकल सकता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी if you're rejected, he was also rejected. अगर उनको नकारा गया था, उनका तिरस्कार किया गया था तो अगर आपका हो रहा है तो उनको भी किया गया था। If at all that somebody says that, I do not have a acceptable family background, अगर कोई ये कह रहे हैं कि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो स्वीकारनीय नहीं है, so also Jesus did not have an acceptable family तो background. यीशु मसीह की वंशावली में भी हम देखते हैं He had a prostitute कि एक व्यभिचारिणी थी in the family lineage. वंशावली में उनके। So imagine, it cannot get worse than that. तो कल्पना कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है ना। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, God wants to encourage us yet again this morning. इस सवेरे के वक्त पुनः परमेश्वर हमको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। Before we go in to see the next 3 things, अगली 3 बातों को देखने से पहले I want us to open our Bibles to Hebrew chapter 2 verse 18. आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों में देखेंगे इब्रानी की किताब 2 अध्याय 18वां वाक्य। I'm going to read for us from the NKJV version, not the NLT but NKJV version. It says, for in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। This morning I want to once again emphasize on the last portion of this particular verse. इस सवेरे के वक्त ये वाक्य के ब भाग पर मैं भार देना चाहता हूँ, जोर देना चाहता It हूँ। says he is able to aid those who are tempted. लिखा हुआ है तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। The Lord Almighty want to aid us this morning. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं, If हमारी you're, सहायता करना चाहते if you're हैं। going through a time of discouragement, अगर आप एक निराशमय समय से गुजर रहे if हैं, you're dismayed in a certain situation, अगर आप किसी स्थिति में कष्टित है, my brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी the बहन, Lord want to strengthen you. प्रभु आपको बल प्रदान करना चाहते Receive हैं। that strength in the name of उस Jesus बल को आप Christ. स्वीकार कर लीजिएगा मसीह यीशु के नाम से। It's quite possible somebody may be standing up and saying that I've been disappointed by people. ये हो सकता है कि कोई खड़ा होकर ये कह रहा होगा कि लोगों ने मुझे निराश कर दिया है। This morning the Lord Jesus Christ says that I too
went through it and I understand it. और इस सवेरे के वक्त यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैं भी इससे गुजरा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ। He had Judas as his treasurer. और देखिए यहूदा उनका भंडारी था। He counted on him and he went out and sold him. और देखिए ये यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया था Just for 30 pieces of silver that he sold 30 him. चांदी के सिक्कों के लिए। And he sold and he sealed the deal with a kiss. और उसने इस सारे जो डील को चुंबन के साथ में बंद कर दिया। Imagine how hurtful Jesus must have felt. आप कल्पना कीजिएगा कि यीशु को कितना दुख लगा होगा। It cannot get worse than that. इससे बुरा क्या हो सकता है। He had some close confidants. और उनके कुछ चंद नजदीकी लोग थे। Peter, John, James. पतरस, यूहन्ना, याकूब। Jesus requested them to wait and watch and pray. यीशु मसीह ने उनसे अनुरोध किया था कि रुके रहो, बने रहो, सतर्क रहो, प्रार्थना करो। Even for 1 hour, these people could not minister. 1 घंटे के लिए भी वो प्रार्थना कर नहीं They पाए। could not pray for Jesus यीशु मसीह Christ. के लिए प्रार्थना कर नहीं पाए। Imagine those people whom he counted rejected him by even denying him from in front of so many people. और देखिए उन लोगों को जो वो समझते थे कि हमारे मेरे साथी हैं, तो उन लोगों ने लोगों के सामने जो है उनका इनकार कर दिया। If you are somebody who's been disappointed, अगर आप ऐसे जन हैं जो लोगों को लेकर निराश हैं, please don't worry. कृपा कर चिंता मत करिएगा। Our Savior had gone through it and he understands and he's ready to strengthen us. हमारा बचाने वाला यीशु मसीह भी उन चीज़ों से गुजरे हैं, वो आपको समझते हैं और आपके हालत को समझते हैं और आपको बल प्रदान करने के लिए वो मौजूद हैं। This morning, if you're somebody who cry and say, Pastor, I've been constantly receiving demands upon demands and I'm tired of the demands that the life is giving me. और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि पासवान मेरे से बहुत ज़्यादा मांग की जा रही है। Jesus went through it. यीशु इससे गुजरे हैं। Vast crowds followed him. अनगिनत संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए He थे। did not have a private movement. उनका कोई एक व्यक्तिगत ऐसा समय नहीं था। He was followed by people. हर बार लोग उनका पीछा कर रहे He थे। had to get up 3 a.m. in the morning and go and spend time in the presence of सवेरे के God. वक्त 3 बजे उनको उठना पड़ता था और जाकर जो है परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना पड़ता था। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, he went through it वो इन चीजों से गुजरे हैं। constantly, continuously. निरंतर वो गुजरे हैं। There were demands made on him. उन पर जो है ये मांग थी। Jesus fulfilled all those demands. यीशु मसीह ने उस सारी मांगों को पूरा किया। Yes, at one certain phase of life, हाँ, जीवन के एक ऐसे संदर्भ में you will go through this kind of situations. जीवन के ऐसे एक समय में आप ऐसी चीजों से गुजरेंगे। When you go through it, cry to him. जब आप ऐसी चीजों से गुजर रहे होते हैं तो आप प्रार्थना कीजिएगा। The Lord understands you. परमेश्वर आपको समझते हैं। That you may be tired, He'll strengthen you. और वो आप शायद थक गए होंगे, वो आपको बल प्रदान He will करेंगे। put His strength into you. वो अपना बल आप में डाल देंगे। You'll be able to meet every demand that's placed upon और you. आपके जीवनों में जो भी डिमांड है या जो भी मांग की जाती है आपसे, आप फिर वो पूरा कर पाओगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी maybe बहनों, this morning you may be crying and saying, इस सवेरे के वक्त शायद आप ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे I have been falsely accused by people. कि लोगों ने मुझ पर गलत आरोप लगाया है। If you are somebody like that, अगर आप ऐसे जन हैं, don't worry, Jesus has gone through it. चिंता मत करिएगा, यीशु मसीह उससे गुजरे हैं। He understands you वो आपको समझते हैं and He is ready to strengthen और you. वो आपको बल प्रदान करने के लिए तैयार है। When He would sit with those sinners जब वो पापियों के साथ में बैठते to थे, minister to them, उनकी सेवकाई करने के to लिए, build them, उनको बनाने के लिए, to make them to be what they're supposed to be. उनको होने देने के लिए या तैयार करने के लिए जो उनको होना चाहिए, All those Pharisees looked at Him and they said that, look at the friend of sinners. और सारे वो फरीसी लोग जो है यीशु को देखकर कहने लगे कि ये पापियों के दोस्त को देखो। You can see that in Matthew chapter 11 verse 19. मत्ती के 11वें अध्याय के 19वें वाक्य में आप ये देख सकते हैं। They called Him, they termed Him, they named Him as
friend of sinners. और ये फरीसियों ने यीशु मसीह को नाम दिया था कि ये जो है पापियों का दोस्त है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, accusations were very common to Jesus देखिए यीशु के लिए आरोप या गलत इल्जाम लगाना ये आम बात थी। until the last breath. Jesus suffered various accusations. आखिर की सांस लेने तक यीशु मसीह ने ये गलत आरोपों को झेला है। If you call yourself his servant, अगर आप अपने आप को उनका सेवक बुलाते हैं, if you call yourself the disciple of Jesus अगर Christ, आप अपने आप को नजरती यीशु मसीह के शिष्य शागिर्द बुलाते you हैं, are bound to go through what your master, my master, our master went through. तो हम भी उन चीजों से गुजरेंगे जो हमारे स्वामी जिन चीजों से गुजरे हैं। But let me tell you this very clearly. लेकिन मैं आपसे ये कहूँ स्पष्ट रूप से, Since he himself had gone through it, क्योंकि वे खुद इन सारी चीजों से गुजरे हैं। the verse 18, the last portion said that he is able to strengthen us. इसीलिए वो हमको बल प्रदान करने के लिए सक्षम है। He is able to help us in our weaknesses. वो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ जो है हमको मदद करने के लिए तैयार हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, all you need to do is nothing but just look unto him. आपको सिर्फ ये करना है, मुझको सिर्फ ये करना है, हमको सिर्फ ये करना है, उनकी ओर देखना है, Make him a role model. उनको जो है आदर्श बना लेना है, Make his life a thing, a path to emulate. और उनका जीवन जो है हमारे लिए एक रास्ता हो जाए, एक मार्ग हो जाए, मार्ग पर चलने के लिए। Expect all that he went through to come to you and go through it. As you go through it, that he is ready to help you. अपेक्षा कीजिएगा कि जिन चीज़ों से यीशु मसीह गुजरे हैं हमारे जीवनों में भी वो चीज़ें हो सकती हैं और वो हमारी मदद करेंगे कि हम इन चीज़ों से गुजरे। This morning I only talked about 3 and yesterday we talked about 4. और इस सवेरे के वक्त मैंने 3 बातों के बारे में बात की और कल मैंने 4 बातों के बारे में बात की We थी। only addressed 7 things. हमने सिर्फ 7 बातों को लेकर But, आपसे बात की। but when Bible says लेकिन जब पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है that he has gone through all that we are going through, कि यीशु मसीह उन सारी चीज़ों से गुजरे हैं जो चीज़ों से हम गुजर रहे हैं। let me tell you, my brothers and my मैं आपसे कहूँ sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, indeed that he has gone through it. सत्य में उन सारी चीज़ों से वो गुजरे हैं। That word which is mentioned in the Bible is true. जो पवित्र शास्त्र में दर्ज है वो सत्य है I'm telling you, he has gone through it and he is ready to strengthen us. और वो उन चीज़ों से गुजरे हैं और हमको वो बलशील बनाने के लिए तैयार है। All you need to do is, हमको सिर्फ ये करना है, again I repeat, all you need to do is फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, आपको सिर्फ ये look करना unto है, him, उनकी ओर देखिएगा, hold on to him. उनको धर कर रहिएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं he will continue to give his strength to you. वो होने देंगे कि उनका बल आपका भाग हो जाए, He will make you to be an overcomer वो होने देंगे कि आप विजयी बनकर रहे to his glory उनकी महिमा के लिए in the name of यीशु Jesus मसीह के Christ. नाम से। With this in heart and mind, और इन बातों को अपने मन में और हृदय में रखते हुए let us go into the day. दिन में जाएंगे। The Lord is with you, परमेश्वर आपके साथ है, ready to strengthen you. आपको बल प्रदान करने के लिए तैयार है। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।